ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے ایگزٹ کنٹرول لسٹ کی نئی پالیسی کی۔ سیاسی شخصیات سمیت 3000 افراد کے نام ای سی ایل سے نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ وزارت داخلہ نے نئی ای سی ایل پالیسی کے مطابق کاغذات کی تیاری شروع کر دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ایگزٹ کنٹرول لسٹ کی نئی پالیسی کے حوالے سے سیاسی شخصیات سمیت 3000 افراد ایسے ہیں جن کے نام ای سی ایل سے نکلنا شروع ہوئے ہیں۔ وزارت داخلہ نے نئی ای سی ایل پالیسی کے مطابق کاغذات کی تیاری بھی شروع کر دی ہے۔ ای سی ایل کی نئی پالیسی کے تحت وزارت داخلہ نے سیاسی شخصیات سمیت 3000 افراد کے نام نکالنے کا کام شروع کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے نئی ای سی ایل پالیسی کے مطابق کاغذات کی تیاری شروع کر دی ہے۔ متعدد اہم سیاسی شخصیات کے نام ای سی ایل سے نکالنے کا عمل جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سمیت دیگر شخصیات کے نام اس نئی پالیسی کے تحت نکال لیے جائیں گے۔ تاہم عدالتوں کی جانب سے ای سی ایل میں ڈالے گئے افراد کے ناموں کو نہیں نکالا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے مبینہ دھمکی آمیز خط کے معاملے پر سپریم کورٹ سے کھلی سماعت کا مطالبہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بیرونی سازش ثابت ہو گئی۔ قومی سلامتی کمیٹی کے نئے اعلامیے میں بھی پاکستان میں مداخلت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ لندن میں نواز شریف، پاکستان میں شہباز شریف اور آصف علی زرداری اس سازش میں ملوث تھے۔ کارکنان حقیقی آزادی مارچ کی تیاریاں کریں۔ کاشف رفیق کی رپورٹ۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی بنی گالہ میں پریس کانفرنس، کہا پی ٹی آئی حکومت کو ہٹانے کی سازش لندن میں تیار ہوئی۔ نواز شریف، شہباز شریف اور آصف علی زرداری اس سازش میں ملوث تھے۔ سپریم کورٹ سازش پر اوپن سماعت کرے۔ مجھے اتنا بھی پتا تھا کہ لندن میں بیٹھ کے اس نے پوری سازشیں کی بیرون ملک کے ساتھ، اور یہاں جو چھوٹا بھائی تھا وہ پوری طرح ملوث تھا اور زرداری پورا ملا ہوا تھا، کیونکہ وہ سازش باہر کی کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ کو اندر میر جعفر اور میر صادق نہ ملے۔ کپتان نے اپنے کھلاڑیوں کو احتجاجی مارچ کی تیاریاں کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ بولے پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے اسلام آباد آنے کی جلد کال دیں گے۔ عوام کا سونامی اسلام آباد آئے گا۔ آج جو ہم اناؤنس کیا ہے، میں نے آج ہماری میٹنگ کی ہے، میں نے اپنی ساری تنظیموں کو آج تیاری کروا رہا ہوں۔ اب سے سارے ہمارے پاکستان کے اندر گاؤں لیول کے اوپر، محلہ لیول کی تنظیموں کو میں نے آج انسٹرکشنز دے دی ہیں، سب تیاری کریں اسلام آباد کی حقیقی آزادی کی مارچ کے اوپر۔ عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر جانبدار ہے، اس پر کوئی اعتبار نہیں، انہیں فی الفور استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ الیکشن کمشنر اتنا ایک جانبدار قسم کا آدمی ہے جس کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد ہی نہیں ہے، سارے فیصلے ہی ہمارے خلاف کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو کسی کے اوپر ایکشن لے لیتا ہے اور جب چاہتا ہے نہیں لیتا، کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی پارٹی میں ہے۔ الیکشن کمشنر کو ریزائن کرنا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم نے ذوالفقار علی بھٹو، پرویز مشرف اور انہیں دی جانے والی دھمکیوں کی بھی تفصیلات بتائیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو دھمکی ملی تھی، ایک دفعہ مشرف کو دھمکی ملی تھی جب چاروں شانے چت ہو کے اس کی جنگ میں لے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا نام بھی ای سی ایل میں ڈال دیا جائے، وہ ملک سے باہر نہیں جا رہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران خان کی سازش کو جھوٹا پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ کہتی ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اعلامیے کے بعد عمران خان کا بیانیہ دفن ہو گیا ہے۔ اتحادی ساتھ چھوڑ گئے تو عمران خان نے خط لہرا دیا۔ اگر 8 مارچ کو مراسلہ ملا تھا تو کیا 27 مارچ تک سوئے ہوئے تھے؟ عوام کو بے وقوف بنانا بند کریں، اب جھوٹے تھے اس لیے آپ کو نکالا گیا ہے۔ بہزاد سلیمی مزید بتا رہے ہیں۔ تحریک انصاف عمران خان کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ مریم اورنگزیب نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ میں سابق پاکستانی سفیر نے کہا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، عمران خان کے اتحادی ساتھ چھوڑ گئے تو اس نے جھوٹا خط لہرا دیا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی کل میٹنگ میں وہ ایمبیسڈر صاحب جنہوں نے وہ سائفر لکھی تھی، انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی سازش کا شائبہ تک نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات بریفنگ دی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو، اور اس میں یہ تفصیلی طور پر بتایا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی سازش کی چیز نہیں ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان فارن فنڈنگ کیس کی وجہ سے چیف الیکشن کمشنر سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔ عمران خان قوم کو بے وقوف بنانا بند کریں۔
ये झूठे थे, इसलिए इन्हें इक्तदार से निकाला गया। आपने बार फंड रेजिंग की शौकत खानम के लिए और आपने यहाँ पार्टी फंड्स में पैसे दिए और उसको इलेक्शन कमीशन के अंदर आपने डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए इस्तीफा दे इलेक्शन कमिश्नर या पूरे का पूरा कमीशन क्योंकि आपसे सवाल पूछ रहा है, क्योंकि 30 दिन में उसका फैसला आना है। ये तमाशे, ये गुंडागर्दी, और आज वहां बैठकर क्या लेक्चर दे रहे हैं कि इतना पैसा बचा लेना चाहिए, ये कर देना चाहिए। इक्तदार के बाद जो ख्याल आए वो अपने मुंह के ऊपर तमाचा होता है। वजीर इत्तलात ने कहा कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में अकाउंट्स को डिक्लेयर नहीं किया। उन्होंने शौकत खानम के लिए फंड्स जमा करके पार्टी के लिए इस्तेमाल किया। एहतजाज जरूर करें, लेकिन जब इस्लामाबाद आए तो फॉरेन फंडिंग तोशा खाना का जवाब लेकर आना। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान ने 4 साल में मुल्क के हर शोबे में तबाही मचाई, मुल्क को हर सतह पर नुकसान पहुंचाया गया है। मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा कि इदारों पर हमले, जलाओ गिराओ का सबक भी जल्द इंतखाबात का हरबा है। सुन लो, तुम्हारी धमकियां, तुम्हारी गुंडागर्दी तुम्हारी तबाही का बाइस बनेंगी। मरियम नवाज का कहना था कि इमरान खान ने आइन शिकनी की और अदलिया के अहकामात और कानून का मजाक बनाया। वो कुर्सी की खातिर किसी हद तक भी जा सकते हैं। नौमंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी 7वें रोज़ भी ना हो सकी। नून लीग ने हल्फ बर्दारी ना होने पर कल लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया है। इत्तलात थी कि सदर मुमलिकत की हिदायत पर चेयरमैन सेनेट उनसे हल्फ लेने लाहौर पहुंचेंगे। ताहम गवर्नर हाउस ज़राए ने तस्दीक की कि हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक़िद नहीं हो रही। लीगी रहनुमा अतातारा का कहना था कि अब हमारे पास अदलिया से रुजू करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अदलिया के वाज़ेह अहकामात के बावजूद वज़ीर आला पंजाब के हल्फ को ताख़ीर का शिकार किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को इमरान नियाजी का ज़ाती मुलाजिम ना बनने का मशवरा दे दिया है। कहते हैं कि सदर मुमलिकत का ओहदा सियासी नहीं, आईनी है। आरिफ अलवी को ओहदे का ख्याल नहीं तो इस्तीफ़ा दे दें। इस्लामाबाद से जारी बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुल्क इमरान नियाजी के हुक्म पर नहीं, आइन के मुताबिक चलना है। आइन पर अमल का वक्त आते ही सदर, गवर्नर और पूरी PTI बीमार पड़ जाती है। सुप्रीम कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की मुसलसल तौहीन की जा रही है। 21 दिन से पंजाब वज़ीर आला और काबीना के बगैर चलाया जा रहा है। सदर आइन पर अमल करें और फौरी नामजदगी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुख्तलिफ वजूहात के सबब तरक्की की दौड़ में बलोचिस्तान पीछे रह गया है। उन्होंने बलोचिस्तान के लापता अफराद का मसला हल करने की यकीन दहानी भी करा दी। कहा, मामला बाइख्तियार अफराद के सामने उठाएंगे। आज़म शहबाज शरीफ कोयटा पहुंचे, जहां उन्होंने खुजदार कुछ लाख शाहरा का संगे बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि मादनियात के लिहाज से सबसे अमीर सूबा है, लेकिन बलूचिस्तान के वसाइल से फायदा उठाया नहीं गया। मुख्तलिफ वजूहात के सबब पाकिस्तान की तरक्की की दौड़ में बलूचिस्तान पीछे रह गया। बलूचिस्तान की महरूमियों से तो कोई इख्तिलाफ राय नहीं है। ये सूबा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की दौड़ में बहुत पीछे रह गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के लापता अफराद का मसला हल करने की यकीन दहानी कराते हुए कहा, मामला बाइख्तियार अफराद के सामने उठाएंगे। अख्तर जान मेंगल साहब इसको ताकीद के साथ बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। मैं आवाज उठाऊंगा और जो भी इस हवाले से जो बाइख्तियार हैं या जिनकी जिम्मेदारी, उनसे बात करेंगे। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कदूस बजिंजो ने मुलाकात की, जिसमें बलूचिस्तान के तरक्याती अमूर और अमनो अमान समेत सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान में अमनो अमान की सूरत हाल पर आला सतह का जायजा इजलास भी हुआ। शुरका को सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत कोई काम खुद करेगी या उनके मंसूबों का इफ्तिताह करती रहेगी। एक ट्वीट में साबिक विफाकी वजीर का कहना था कि कोयटा कराची शाहरा का 2 माह पहले कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो चुका था और मुराद सईद सेनेट में मंसूबे का इफ्तिताह का ऐलान भी कर चुके थे।
اور آپ ہمارے بغیر حکومت بنا سکے نہ بچا سکے، آئندہ انتخابات میں ان کا ووٹ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا۔ رہنما ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کا کارکنوں سے خطاب، کہا کراچی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا جو کراچی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ہم پاکستان کی جمہوریت میں شامل ہوئے ہیں، اپنے لیے وزارتیں نہیں مانگی۔ پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا۔ آپ نہ ہمارے بغیر حکومت بنا سکے نہ ہمارے بغیر حکومت بچا سکے۔ اس دفعہ ان کا مینڈیٹ چھین لیا جائے گا، اس دفعہ ان کا ووٹ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا۔ کراچی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا جو کراچی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جمہوریت واحد راستہ ہے جس پہ چل کر پاکستان اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اور پاک سرزمین پارٹی کا سندھ کے بلدیاتی قانون میں بلدیاتی انتخابات سے قبل ترمیم کرنے کا مطالبہ۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ 3.5 سال تک عمران خان کی حکومت زرداری چلاتے رہے۔ پیپلز پارٹی مخالف جماعتوں کی صف بندی۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے وفد کی پاکستان ہاؤس کراچی میں پی ایس پی رہنماؤں سے ملاقات۔ بلدیاتی قانون میں ترامیم اور بلدیاتی انتخابات پر مشترکہ حکمت عملی تیار کرنے کے لیے مشاورت۔ جی ڈی اے کے مرکزی سیکریٹری اطلاع سردار رحیم اور صفدر عباسی نے بلدیاتی انتخابات سے قبل کیا بلدیاتی قانون میں ترمیم کا مطالبہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی قانون اس وقت نہیں ہے اس فیلڈ کے اندر جس قانون کے تحت الیکشن کمیشن یہ الیکشن کرانے جا رہی ہے۔ اگر ہردردی کی گئی تو پھر ہمارا ارادہ یہ ہے کہ کورٹوں میں بھی اور سڑکوں پہ بھی انشاءاللہ مزاحمت کریں گے اور ان کا ہاتھ روکیں گے۔ پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ بلدیاتی قانون میں ابہام ہے۔ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کی حکومت زرداری چلا رہے ہیں۔ زرداری صاحب جو ہیں وہ عمران خان کی حکومت چلا رہے ہیں۔ یہ صرف منہ سے فائر ہے سارا، یہ صرف ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ برا بولتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی زرداری صاحب عمران خان صاحب کی حکومت چلا رہے ہیں، عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے زرداری صاحب کی حکومت چلا رہی ہے۔ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے صوبے کے مسائل پر مل کر جدوجہد کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اور پاک سرزمین پارٹی کا سندھ کے بلدیاتی قانون میں بلدیاتی انتخابات سے قبل ترمیم کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ 3.5 سال تک عمران خان کی حکومت زرداری چلاتے رہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق یہ کہتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات کے بغیر الیکشن سے کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ انتخابات میں دھاندلی دولت کی ریل پیل کا کلچر ختم کرنا ہوگا۔ انہوں نے بیان میں مزید کہا کہ تمام جماعتیں انتخابات میں نمائندگی کے اصول پر اتفاق کریں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اسمبلی میں نشستیں مختص کی جائیں۔ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کا واحد راستہ شفاف انتخابات ہیں۔ وزیر اعظم الیکشن کے بروقت انعقاد کو یقینی بنائیں۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت ہوا ہے بریک کا۔ ہمارے مفتاح اسماعیل نے واشنگٹن میں ورلڈ بینک کے نائب صدر سے ملاقات کی۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے جاری منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے ہمراہ ملاقات میں وزیر مملکت خزانہ عائشہ غوث پاشا بھی موجود تھیں۔ وزیر خزانہ سے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر IMF نے بھی ملاقات کی، جس میں وزیر خزانہ نے درپیش معاشی مسائل اور نئی حکومت کی ترجیحات سے انہیں تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ اور IMF کا دباؤ، نئی حکومت کی نے سبسڈی ختم کر کے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کرنے کی شرط تسلیم کر لی ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری اور معاشی اصلاحات جیسی بڑی شرائط پر بھی رضامندی ظاہر کرتی ہے۔ Talked about removing the subsidy on fuel. I agree with them. IMF نے پہلی ملاقات میں ہی حکومت کو سخت مشکل میں ڈال دیا۔ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے آئی نئی حکومت نے IMF کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ واشنگٹن میں ہونے والے مذاکرات میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے IMF کی پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کرنے کی شرط منظور کر لی۔ Talked about removing the subsidy on fuel. I agree with them. Yes, there should be some targeted subsidy to the very poor. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری اور معاشی اصلاحات جیسی بڑی شرائط کو بھی تسلیم کر لیا۔ Things that the IMF are asking, for some structural reforms, independence of the central bank. I mean, those are not things that should be controversial. Those are normal things that we should be doing anyway. کہا IMF پروگرام دوبارہ شروع کرنے کے خواہش مند اور معاشی استحکام کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے غریبوں کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ مذاکرات میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے ہمراہ وزیر مملکت عائشہ غوث پاشا اور گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر نے بھی شرکت کی۔
PTI रहनुमा हम्माद अजहर ने हुकूमत और IMF के दरमियान तय होने वाली शराइत आवाम के सामने लाने का मुतालबा कर दिया है। ट्वीट में लिखा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने वाशिंगटन में माशी, सियासी और खारजा पॉलिसी से मुतालिक जो शराइत तस्लीम की हैं उनकी मुकम्मल तफसीलात सामने लाई जाएँ। उनका कहना था कि इक़्तिदार पर मुसल्लत होने के बदले में किन चीज़ों पर सौदा हुआ है ये कौम को फौरी तौर पर बताएँ। और कुछ बात मौसम की सूरत हाल की। लाहौर में गर्मी का जोर कम ना हो सका। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 38 सेंटीग्रेड बरकरार रहा और आइंदा चंद दिन तक मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं न्यूज़ 1 के नुमाइंदे अब्बास हैदर से। जी अब्बास, बताइएगा क्या सूरत हाल है मौसम की? जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और सुबह सवेरे आज भी चिलचिलाती धूप ने जो है वो लाहौर का मौसम गर्म कर दिया है। अभी भी अगर बात करें, आसमान बिल्कुल क्लियर है, सूरज पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है। जबकि अभी की दर्जा हरारत की बात करें तो अभी लाहौर का दर्जा हरारत तकरीबन 30 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि आज सारा दिन लाहौर का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा और इस मौसम में ख़ास तौर पर अगर बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। धूप में जो है वो शदीद गर्मी महसूस होती है, जबकि छाँव में हल्की हल्की सी हवा फील होती है, जिसकी वजह से मौसम कुछ बेहतर लगता है। लेकिन जो महकमा मौसमियात ने मज़ीद पेशन गोई ये की है कि आइंदा पूरा हफ्ता लाहौर में जो मतला है वो क्लियर रहेगा, सूरज जो है वो मुसलसल इसी तरह चमकता रहेगा और गर्मी बरसाता रहेगा। ये जो पूरा हफ्ता है ये मौसम इसी तरह रहेगा, लेकिन अगले हफ्ते में बताया जा रहा है कि कुछ जो है वो बादलों का सिलसिला लाहौर में एंट्री लेगा। लेकिन अभी तक तो मौसम में ऐसे ही है, तलखी है, चिलचिलाती धूप है और शहरी जो है वो रोज़ों में ख़ास तौर पर एहतियात करें इस धूप में निकलने के लिए और इस्तेमाल करें। ठीक है, महकमा मौसमियात का बताना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तफसीलात बता रहे थे अब्बास हैदर, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मुल्क भर में तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों की हल्का बंदियों का काम 3 अगस्त तक जारी रहेगा। हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन ने नक्शा जात और दीगर डेटा मुतालिका इदारों से हासिल कर लिया है। कमीशन के एलानिये के मुताबिक 11 अप्रैल से मुल्क भर में तमाम कौमी और सूबाई असम्बली की हल्का बंदियों का काम 3 अगस्त तक बिला तातुल जारी रहेगा। हल्का बंदी शेड्यूल के मुताबिक इब्तदाई हल्का बंदियाँ 24 मई तक मुकम्मल हो जाएंगी, जिनकी इब्तदाई इशाअत 28 मई को कर दी जाएगी। इन हल्का बंदियों पर एतराज़ात 29 मई से 28 जून तक जमा करवाए जा सकेंगे। इन एतराज़ात पर समाअत रकम जुलाई से 30 जुलाई तक होगी। इन हल्का बंदियों की हतमी इशाअत 3 अगस्त को की जाएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी ने बड़ा फैसला कर लिया है। फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए कानून साज़ी करने पर इत्तेफाक किया गया है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि पीका ऑर्डिनेंस और PMDA जैसे काले क़वानीन के ज़रिए आवाम को ग़ुलाम बनाने की साजिश की गई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब से मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी की मुलाकात हुई, जिसमें फेक न्यूज़ से मुतालिक अहम फैसला किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि पेमरा कानून में मुशावरत से कानून साजी की जाएगी। पेमरा कानून में फेक न्यूज़ के खात्मे की शिक शामिल की जाएगी। फेक न्यूज़ से कौमी सलामती, मफादात, अवाम के इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने का तदारक होगा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में आज़ादी इज़हार राय के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं होगा। सहाफ़त की मौत सियासत और जमहूरियत की मौत है। सियासत, सहाफत और अवाम पर 4 साल क़यामत के गुजरे हैं। चैनल, कॉलम, प्रोग्राम, ज़बान और आंख बंद करके कौम की आज़ादी छीनने की कोशिश की गई। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पीका ऑर्डिनेंस और PMDA जैसे काले क़वानीन अवाम को ग़ुलाम बनाने की साजिश की गई। साफ़ी बरादरी की मशावरत से चलेंगे। आपकी आरा की रोशनी में मीडिया की आज़ादी फ़रोग़ पाएगी। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि 4 साल में मुल्क की मैशियत की तरह मीडिया को भी माली तौर पर तबाह किया गया। साफ़ियों की माशी तबाही का एहसास है, चाहते हैं जल्द नुकसानात का इज़ाला करें। साफ़ी बेरोजगार हुए, कई जान से गए, तनख्वाहें आदी हो गयी। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि साबिक़ हुकूमत ने मुल्क को माशी दिवालिया करने की साजिश की। गैर मुल्की साजिश में साफ़ियों पर संगीन इल्ज़ामात की शदीद मज़म्मत करते हैं। PFUJ के मुतालबे की हमायत करते हैं। झूठों को घर तक पहुँचाएंगे। जो सच बोलता है चोरी पकड़ता है। इमरान साहब इसे गद्दार बना देते हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि गैर मुल्की साजिश के नाम पर इदारों, अदलिया और मीडिया पर कीचड़ उछालने वालों को स्पेस नहीं दी जाएगी। झूठ पर मबनी इंतशारी फसादी बयानिए के तदारक में मीडिया अपना किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि सियासतदानों की जाए पनाह आज़ाद गैर जानबदार मीडिया होता है, हम इसे ताकतवर करेंगे। वफ्द ने मरियम औरंगज़ेब को वज़ारत इत्तलात का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वफ्द ने कहा
की उम्मीद है जमहूरी हुकूमत जमहूरी मिजाज बरकरार रखेगी। खबरें और भी शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद, लेकिन उससे पहले शामिल करेंगे न्यूज़। और पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार, मादरे वतन की हिफाजत में पाक फौज के 3 जवान कुर्बान हो गए। वाक़े पर पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत से शदीद एहतजाज किया है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दिवागर में अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायरिंग कर दी। पाक फौज के जवानों ने फायरिंग का मौसर जवाब दिया, जिससे दहशत गर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचा। ताहम इस वाक़े में पाक फौज के 3 जवान हवालदार तैमूर, नाइक शोएब और सिपाही साकिब नवाज शहीद हो गए। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान दहशत गर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल की शदीद मजम्मत करता है। तवक्को की जाती है कि अफगान हुकूमत मुस्तकबिल में ऐसी सरगर्मियों की इजाजत नहीं देगी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मकबूजा कश्मीर का दौरा करेंगे। काबिज़ इंतज़ामिया ने वादी को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया है। हुर्रियत क़यादत की अपील पर आज वादी में मुकम्मल हड़ताल होगी। फाशिस्ट मोदी आज मकबूजा जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। मकबूजा वादी को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में जगह जगह नाके लगा दिए गए। काबिज फौज रुकावटें लगाकर कश्मीरियों को तंग करने लगे। 3 दिन में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 7 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया जा चुका है। नरेंद्र मोदी के दौरे के खिलाफ हुर्रियत क़यादत की अपील पर वादी में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। हुर्रियत रहनुमाओं का कहना है कि मोदी के दौरे का मकसद आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर की जमीनी सूरत हाल से गुमराह करना है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मकबूजा कश्मीर में मुमकिन दौरे पर आज़ाद कश्मीर के शहरी सरापा एहतजाज हैं। कश्मीरी कहते हैं कि मोदी के हाथ मजलूम कश्मीरियों के खून से रंगे हुए हैं। जिसने गुज़श्ता 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उन्होंने कश्मीर में कर्फ्यू नाफज करते हुए लोगों को पाबंद कर रखा है, वो किस मुँह के साथ आ रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि जिन्होंने कश्मीरियों की माशी सतह पर, अखलाकी सतह पर, मजहबी सतह पर बुरी तरह उनको जो है वो यरगमाल कर रखा है। लाखों मुसलमानों का कातिल आज किस मुंह से मकबूजा कश्मीर जा रहा है, जिसने दफ़ा 370 कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत थी 35A वो ख़त्म करके वहाँ के अवाम को दस्तो पा किया है, वहाँ की मईशत तबाह की है। दुनिया के तमाम कवानीन वो पाँव तले रौंदे और फिर वो जाके वो दुनिया को बताए कि कश्मीरी मेरे साथ हैं। ये तो अहमकाना सोच है। ना पहले कश्मीरियों ने फ्रॉड इंतखाबात तस्लीम किए, ना ढोंग मज़ाकरात माने। कश्मीर की आज़ादी तक, भारत की बर्बादी तक इंशाल्लाह एक ही नारा है कि हमारा नारा सब पे बारी, राय शुमारी राय शुमारी। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने नरेंद्र मोदी के दौरे मकबूजा कश्मीर पर आज योम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कश्मीरियों ने आज़ादी के लिए हर किस्म की कुर्बानियाँ दी हैं। अब वक्त आ गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक दे। सरदार हमीद की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की अपनी काबीना और हुर्रियत रहनुमाओं के हमरा कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी के दौरा मकबूजा कश्मीर पर योम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया कि नरेंद्र मोदी कल मकबूजा कश्मीर के अंदर तशरीफ ला रहा है, तो नरेंद्र मोदी को मैंने हमेशा मोदी कहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि कश्मीरियों ने आज़ादी के लिए हर किस्म की कुर्बानियाँ दी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए ज़रूरी हो गया है कि वो कश्मीरियों को इनका हक़ खुद इरादियत दिलवाए। 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने जब कश्मीर का प्रिंसली स्टेटस ख़त्म किया, जो सरासर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है, इसलिए कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हिंदुस्तान की कमिटमेंट्स थी कि कश्मीरियों को ये हक दिया जाएगा कि वो अपने मुस्तकबिल का क्या फैसला करते हैं। इनका कहना था कि भारत निहत्ते कश्मीरियों पर मज़ालिम ढा रहा है, आलमी बरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए। और मारूफ भारतीय फिल्मी अदाकार रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर जसविंदर भला करतारपुर
पहुंच गए हैं। हेड ग्रंथी बाबा गुरु नानक की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। जसविंदर सिंह भला को तोहफे तहाइफ भी पेश किए गए। वो आवाम में घुल मिल गए और सेल्फियां भी बनवाईं। गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि बड़ी उम्मीद थी कि एक दिन में हमें भी करतारपुर का वीज़ा मिलेगा। हम दर्शन करेंगे। ख्वाहिश है कि सर्दियों में पूरे पाकिस्तान का वीज़ा मिले ताकि लाहौर के रास्ते ननकाना साहब, पंजा साहिब में भी दर्शन कर सकूं। कत्ल केस में गिरफ्तार पीटीआई रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली फैसल जमान के एमपीए हॉस्टल से फरार की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। ज़िला हरीपुर से मुंतखब एमपीए को एबटाबाद जेल से प्रोडक्शन ऑर्डर पर असम्बली इजलास में शिरकत के लिए पेशावर लाया गया था। असम्बली इजलास ना होने के बावजूद फैसल जमान एमपीए हॉस्टल में मौजूद थे। उनकी मुंतकिली के बाद एमपीए हॉस्टल को सब जेल करार दिया गया था। फैसल जमान अपनी ही पार्टी के रहनुमा के कत्ल केस में मुलव्वस हैं। और कोहाट में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं जबकि 4 अफराद जख्मी हुए हैं। फायरिंग का वाक़या कच्ची में रास्ते के तनाज़े पर पेश आया। दोनों ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। मुल्क में गर्मी का राज बरकरार है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में गर्मी से चेहरे मुरझा गए हैं। महकमा मौसमियात ने आज रात जुड़वां शहरों में हल्की बारिश की पेशगोई की है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ 1 उमर बर्नी से। उमर बर्नी, बताइएगा महकमा मौसमियात का क्या बताना है? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि जो शुमाली इलाकात है वहाँ पर आज शाम को हल्की बारिश और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और ख़ित्ता पोठवार में जो है आज शाम से जो है वो हल्की बारिश और तेज़ हवाएँ चलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको इस्लामाबाद के हवाले से बताएं तो इस्लामाबाद में भी आज मौसम गर्म और खुश्क ही रहेगा। तहम आज शाम के बाद जो है वो हल्की बारिश और तेज़ हवाएं, गर्द आलूद हवाएं जो हैं वो चलने की पेशगोई महकमा मौसमियात की जानिब से की गई है। तहम आइंदा पूरा हफ्ते जो है वो मुल्क के बेशतर इलाकों में जो मौसम है वो गर्म और खुश्क ही रहेगा। तहम जो शुमाली इलाका जात है वहाँ पर कहीं कहीं हल्की बारिश और तेज़ हवाओं की पेशगोई जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से की गई है। जी बर्नी, आप मौसम की सूरत हाल से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए न्यूज़।